ارشد شریف شہید، اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا، لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے، اپنی جان دینی پڑ گئی. جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا، ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے، یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی. شہباز شریف کی ڈیولپمنٹ صرف اشتہارات میں ہوتی ہے. ہفتے کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی کب آنا ہے، اعلان کروں گا کہ ہمارا لانگ مارچ اسلام آباد کب پہنچے گا. نواز شریف سمیت سارا ٹبر ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے. جب تک نواز شریف کو یقین نہ ہو کہ وہی جیتے گا تب تک الیکشن نہیں کرائے گا. آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. شہباز شریف کی ڈیولپمنٹ صرف اشتہارات میں ہوتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب. معیشت کو چھوڑ گیا تھا تب 6% پر آج کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی، گروتھ ہو رہی تھی، اور آج شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خائف اور الیکشن سے منفی 2% ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو الیکشن کرانا پڑیں گے. عنقریب معاشی حالات کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. پچھلے 6 ماہ میں 6.5 ارب پاکستان پر مزید قرضہ بڑھا ہے. ہمیں ان سے 37 سال کا حساب لینا ہے. 50 سال سے زیادہ اب مہنگائی ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، لمبی زندگی دے. اللہ توکل والا انسان ہے، اور وہ تمام ان مسلمانوں کی طرح جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں، زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو کپتان کھڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ شہر اقتدار کی جانب گامزن. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی قیادت مارچ کی چکوال آمد. لانگ مارچ کے شرکاء کا شاندار استقبال. اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک میں امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. ملک پر سلیکٹڈ لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے. چکوال کی عوام حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب کرائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی ملاقات. عمران خان کی پنجاب حکومت کی کارکردگی کو مثبت انداز میں اجاگر کرنے کی ہدایت. بولے کہ پنجاب حکومت کا غریب دوست پالیسیوں کا اجرا مثبت اور حوصلہ افزا ہے. انصاف اور صحت کارڈ جیسے اقدامات سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. مسرت چیمہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کا اصل ہدف عام آدمی کے لیے سہولتوں کو وسیع کرنا ہے. حقیقی آزادی مارچ کی سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس نے پلان کو حتمی شکل دے دی. مارچ کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں، پنجاب ہائی وے پیٹرول کے 500 اور 122 کمانڈوز کو تعینات کیا جائے گا. 38 ایلیٹ فورس اہلکار، 91 خواتین، 1094 ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. مارچ کی مانیٹرنگ کے لیے کلوز سرکٹ کیمروں کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا سوال متعلقہ وزارت سے پوچھیں. نہ کل کوئی امریکی سازش تھی نہ آج ہے. عمران خان کے نئے یو ٹرن کو ویلکم کہتے ہیں. امریکہ سے برابری کی تعلقات چاہتے ہیں. خارجہ پالیسی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. بولے کہ اتحادی حکومت آئی تو ملک دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا. ماضی میں ڈو مور اور دہشت گردی، اب نیا مرحلہ ہے. اب بھی کہتے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے.
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का वजारत दाखिला का मुतफरक जवाब और USB की कॉपी इमरान खान और दीगर फरीकैन को देने का हुक्म। PTI लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, इन्हें पुरअमन रहने की हिदायत कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। आपने हमारा पिछला ऑर्डर पढ़ा, हमारे एक जज ने इस पर इख्तिलाफ किया। सलमान अकरम राजा से कह देते हैं अदालत के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात। इसाक डार ने सदर आरिफ अलवी को मजमूई इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मरात याफ्ता तबके और सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में ख़ज़ाना और मईशत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क बैठता जा रहा है, इकॉनमी तबाह है, पैसा इनको एक नहीं मिला। 15 दिन से वजीर आजम दाखिल होता है शर्मुल शेख में और निकलता जाके लंदन से कि हम वहाँ, वजीर दाखिला साहब ने कहा कि हम मुशावरत करने आए हैं। पाकिस्तान में आके ज़रा मौसम यहाँ ज़रा ऐसा ही है ना, यहाँ आके कहता नहीं वहाँ मुशावरत नहीं की। अहम तयनाती को इशू बनाया गया। मुल्की सियासत के लिए ये 10 दिन बहुत अहम है। हुकूमत खरीदो फरोख्त के जरिए वजूद में आई। मुल्की हालात संगीन और पेचीदा हो गए हैं। कोशिश है कि मुज़ाकरात से मामला तय हो जाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अगले जुमा से पहले इमरान खान रावलपिंडी में होंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक़ इमरान खान का मुतालबा जायज़ है। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। 63% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। 88% मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि मुल्क सही सिमत के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये इंडिकेटर भी होते हैं, ये इशारे ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक़ की बहाली, आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। जमहूरियत का यहाँ पे जो नाम को रह गई है उसकी एक्सरसाइज होना अवाम होते देखना चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 7 माह में मईशत तबाह कर दी। कोई भी आलमी सरमायाकार सरमाया लगाने को तैयार नहीं। जो हुक्मरान हमें आटा, चीनी, घी की कीमतें बता रहे थे वो खुद आज नजर नहीं आ रहे। फरूक हबीब का तंज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा बोली कि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। हलीमा दिल शेख की बेटी की शादी पर झूठी FIR दर्ज करके पुलिस इनके घर भेजी गई। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुक्मरानों को कई मुल्कों की खाक छानने के बाद इमरान खान के खिलाफ घड़ी बतौर करप्शन ढूंढने पर मुबारकबाद। अरबों की करप्शन करके आज़ाद फिरने वाले घड़ी घड़ी का शोर डाल रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का तंज। बोले कि मफरूर नवाज शरीफ अपने दौरे अदवार में 75 से ज़ायद तहाइफ साथ लेकर गए। तहाइफ की मद में मुल्क को अरबों का चूना लगाने वालों को कुछ ना मिला तो घड़ी का शीशा छोड़ दिया। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा कितना है, आदाद शुमार जारी। स्टेट बैंक ने कर्ज और वाजिबात का डाटा जारी कर दिया। अंदरूनी कर्जों में 4,958 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की कर्जे न मिलने पर मकामी कर्जे ज्यादा लेना पड़े। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। तमाम बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 60 रोज में इक़दामात भी मुकम्मल करे। सिंध हुकूमत इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समय तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। मुत्तहिदा की हल्का बंदियों तक इलेक्शन न कराने की तजवीज़ मुस्तरद की है। तहरीरी फैसले का मतलब। पब्लिक
अकाउंट्स कमेटी का मुफ्त हज की सहूलत खत्म कराने का फैसला। मुफ्त हज पर जाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन PSC नूर आलम खान कहते हैं कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और यहाँ ऐसी सहूलियात आवाम पर बोझ हैं। किसी वजीर, सेक्रेटरी या एमएनए की फैमिली हज पर गई होगी तो उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया। मार्टिन माउवेन जीना कहती हैं अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। तहकीकात से जाहिर होता है ये अंदर के लोगों की कार्रवाई है। तहकीकात से जाहिर होता है कि ये अंदर के लोगों ने की है। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो अहम अफराद ही इस्तेमाल करते हैं। कीनिया पुलिस गैर कानूनी हलाकतों के हवाले से बदनाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरा किसानों को बीज की फराहमी का जायजा लिया गया। इजलास में 12.5 एकड़ रखने वाले छोटे काश्तकारों को ज्यादा रकम देने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि घरों की तामीर के लिए सर्वे का काम हतमी मराहिल में है। वर्ल्ड बैंक ने घरों की तामीर के लिए 110 अरब देने का वादा किया है। सड़कों की मुरम्मत भी जारी है। गवर्नर सिंध कॉन्वेंट सूरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर की तामीर और तरक्की, सेहत और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध बोले कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। शहर में होने वाली कोई भी सरगर्मी मुल्क की मईशत पर असर अंदाज होती है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे।